Everyone, in this video we will learn about the divisibility rules. Divisibility rules का यूज करके हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर, कोई भी लार्ज नंबर गिवन है तो वो किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द divisibility rules. So first of all, divisibility rule of 2. Divisibility rule of 2. So what is the divisibility rule of 2? How can we find any number is divisible by 2 or not? If the last digit or unique digit if the unique digit of any number is 0, 2, 4, 6 or 8. If the unique digit of any number is 0, 2, 4, 6 or 8, then that number is divisible by 2. For example 123. A number is given 123 and we have to find whether it is divisible by 2 or not. So see here, just check the unique digit, last digit, what it is? It is 3. 3 means it is not divisible by 2, because what is the divisibility rule of 2? The last digit should be 0, 2, 4, 6 or 8. Suppose this is 124, so now it is divisible or not? So your answer is yes. Now it is divisible by 2. अब ये 2 से divisible है because last digit क्या है? 4. Okay, so we can write any number, or we can say any number whose last digit or unique digit is 0, 2, 4, 6 or 8, that is divisible by 2. Next, divisibility of 3. What is the divisibility of 3? How can we check any number is divisible by 3 or not? Suppose any number is given. So first of all, add all the digits. हमें क्या करना है? सबसे पहले कोई भी नंबर गिवन है, लेट अस टेक 1, 2, 3, 4, 5, 12,345. So first of all, add all the digits to check the divisibility of 3. So let's add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Then जो भी उनका सम आएगा, whatever be the sum, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15. Okay, add all the digits, you get the sum. If that sum is divisible by 3, see here, what is the sum? 15. Now 15 is divisible by 3. Yes, it is divisible, means this number is divisible by 3. Add all the digits, then if sum is divisible by 3, then the number is divisible by 3. समझ में आया आपको? अगर प्लस करने पे जो आंसर आ रहा है, if that answer is divisible, that sum is divisible by 3, so the given number is also divisible by 3. Let us take one more number, 98765. Okay, now let's check it. सबसे पहले क्या करना है आपको? सभी डिजिट्स को प्लस करना है. So 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5. प्लस करेंगे 9 plus 8. Tell me the answer. That is 17. 17 plus 7 24. 24 plus 6 30. 30 plus 5 35. Okay, now tell me 35 is divisible by 3? No, 35 is not divisible by 3. Therefore this number 98,765 is not divisible by 3. So this is the divisibility of 3. First add all the digits, then check whether the sum is divisible by 3 or not. ये होगी 3 की divisibility. Now next divisibility is divisibility of 4. Divisibility of 4. What is the divisibility of 4? The number formed by last 2 digit of any number. Let's see, 1, 2, 3, 4, 6. So what is the divisibility of 4? The number formed by last 2 digits.
दिस टू डिजिट्स, व्हाट इज द नंबर 46. लास्ट टू डिजिट्स कौन सा नंबर फॉर्म कर रही है 46. इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. सो इसमें हमें क्या करना होगा, लास्ट टू डिजिट से जो नंबर बन रहा है मिलकर, फॉर एग्जांपल यार 46, वी हैव टू चेक इट बाय 4. सो 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, दिस इज 0, नाउ 6, 4 1 जा 4, sorry, now see here, it is not divisible, 46 is not divisible, means this number 1 2 3 4 6 is not divisible by 4. So what is divisibility of 4? Number formed by last two digits must be divisible by 4. अगर लास्ट टू डिजिट से बनने वाला नंबर डिविजिबल है, देन ओनली इट इज डिविजिबल, अदरवाइज द नंबर इज नॉट डिविजिबल. लेट अस चेक वन मोर एग्जांपल. और एग्जांपल हम कौन सा ले सकते हैं 98764. चेक करते हैं इसे, क्या ये डिविजिबल है. सो लास्ट टू डिजिट से बनने वाला नंबर क्या हो गया 64. नाउ चेक इट, 4 1 जा 4, this is 2 4. Now 4 6 are 24, this is 0, means 64 is divisible by 4. So this number 98,764 is divisible by 4. This is the divisibility of 4. Then next, divisibility of 5. Divisibility of 5. Divisibility of 5 is very simple. If the unit digit or last digit क्या होनी चाहिए किसी भी नंबर की 0 और 5. किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, अगर 0 और 5 है, then it is divisible by 5, otherwise the number is not divisible. Let us take an example. 1 2 3 4 5. Is it divisible by 5? So check the last digit. Last digit is 5, so it is divisible. 1 2 3 4 9. Is it divisible by 5? What is the last digit 9, so it is not divisible by 5. This is divisible. 1 0 0 0 5 0. Is it divisible by 5? Yes. Why? Because the last digit is 0. So this is the divisibility of 5. Next, divisibility of 6. What is the divisibility of 6? Any number, the given number should be divisible by 2 and 3 both. अगर जो कोई भी नंबर गिवन है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, then only it is divisible by 6. So suppose an example number is given 1 2 3 4 5 6. Okay, this 6 digit number 1,23,456. हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है. तो हमें 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी इसमें यूज करना पड़ेगी. 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सी द लास्ट डिजिट. इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8, देन इट इज डिविजिबल बाय 2. मींस यहाँ लास्ट डिजिट 6 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, इट इज डिविजिबल बाय 2. अब हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है. सो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सभी डिजिट्स को हम प्लस करेंगे. सो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21, and 21 is divisible by 3. Yes, 21 is divisible by 3. This is 3 7s are 21. So this number is divisible by 2 and 3 both. Therefore it is divisible by 6. It is divisible by 6. Okay, so this is the divisibility of 6. First आपको चेक करना है कि नंबर की लास्ट डिजिट क्या है. इफ इट इज 0 2 4 6 और 8,
देन यू हैव टू ऐड द डिजिट्स. अगर लास्ट की डिजिट इवन नंबर नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है, इट मीन्स दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. और वो 2 से डिविजिबल नहीं है, देन वी हैव नो नीड टू चेक इट बाय 3, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नंबर, then only we have to check it from 3. Otherwise no need to check it from 3. Directly we can say it is not divisible by 6. 6 से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होता है. Then divisibility of 7. बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी ऑफ 7. जनरली आपको नहीं मिलेंगी बुक्स में. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 7? Suppose a number, I will explain you with the help of example. 1 2 3 4 5 6. This is a number और हमें चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं है. So first step, आपको क्या करना है? First multiply the last digit by 2. What is the last digit here? 2. Sorry, 6. So multiply it by 2. 6 2s are 12. Okay. So what you get? 12. जो लास्ट डिजिट को डबल करने पे नंबर आया है उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर. 6 को हमने अलग कर दिया, तो क्या बाकी है? 1 2 3 4 5. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 12 फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर. दो पार्ट हो गए नंबर के, 1 2 3 4 5 एक पार्ट, 6 दूसरा पार्ट. 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, सो वी गेट 12. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. 5 minus 2 3, 4 minus 1 3. दिस इज 3 2 1. अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि नंबर अभी भी ग्रेटर है, हम बता सकते हैं कि डिविज. सो अगेन रिपीट दिस मेथड. अगेन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. लास्ट डिजिट अलग कर देंगे एंड मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 6. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पेयर? 1 2 3 3 minus 6. Okay, now subtract it. 6 and 6 12, that is 7 2 2 1. Is it correct? Check it. Yes, 1 2 2 7. Again repeat it. लास्ट डिजिट को अलग कर देंगे, लास्ट डिजिट को. सो लास्ट डिजिट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 14. नाउ सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 122. 122 minus 14. 12 minus 4, that is 8. 1 minus 1 0. This is 1. Now 108. इसे भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, but now we cannot multiply the last digit by 2, because when we multiply it by 2, what we get? 8 multiplied by 2, that is 16, and we cannot subtract 16 from 10. So now check 108 is divisible by 7 or not. So 7 ones are 7. This is 3 and 8. 7 5s are 35. That is 3. Means this number is not divisible by 7. So we can say the given number 1,23,456 is not divisible by 7. 7 की divisibility क्या है? लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर. रिपीट दिस जब तक आपको एक स्मॉल नंबर नहीं मिल जाए जिसे आप इजीली डिवाइड कर सकें, जो आप डायरेक्ट पता हो ये 7 से डिवाइड होता है, तब तक आप ये प्रोसेस करेंगे. सो दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 7. डिविजिबिलिटी ऑफ 8. So what is the divisibility of 8? The number formed by last 3 digits must be divisible by 8. कोई भी नंबर अगर गिवन है, हमें चेक करना है वो 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है. सो हम कैसे चेक करेंगे? The number formed by last 3 digits. Last 3 digit से फॉर्म होने वाला नंबर. So this is 654. We will divide this number by 8. लास्ट 3 डिजिट से फॉर्म होने वाला नंबर यहाँ कौन सा है? 654. इस नंबर को हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे. इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 मींस द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8. ओके, नाउ लेट्स सी इट. जो हमने 4 की डिविजिबिलिटी में किया था, 4 की डिविजिबिलिटी में क्या किया था? लास्ट 2 डिजिट्स चेक की थी. 8 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट्स चेक करना है. नाउ लेट्स चेक इट. 8 8 जा 64, 1 4, 8 1 जा 8. Means 654, the number formed by last 3 digit is not divisible. So the number 9,87,654 is not divisible by
8। ठीक है, नंबर कब डिविजिबल होगा? जब लास्ट के 3 डिजिट से फॉर्म होने वाला नंबर डिविजिबल है। देन कम्स डिविजिबिलिटी ऑफ 9। divisibility of 9. What is the divisibility of 9? It is same as the divisibility of 3. 3 की divisibility हमने क्या की थी? सबसे पहले sum of all digits, sum of सभी डिजिट्स को हमने प्लस किया था 3 की डिविजिबिलिटी में, वही 9 की डिविजिबिलिटी में भी करना है। सभी डिजिट्स को प्लस करेंगे और अगर वो सम डिविजिबल है 9 से तो नंबर डिविजिबल होगा 9 से। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, एग्जाम्पल इसी नंबर को हम यूज करते हैं 987654। हमें चेक करना है ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। सभी डिजिट्स को प्लस करेंगे 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4। 9 + 8 9 + 8 17 17 + 7 24 24 + 6 30 30 + 5 35 + 4 39। Now 39 is divisible by 9. 9 4s are 36 3. No, 39 is not divisible by 9. Therefore, this number is not divisible by 9. If the sum is divisible by 9, then only the number is divisible by 9. Divisibility of 10. Divisibility of 10 is very simple. If the last digit is 0, only 0, then the number is divisible by 10. Otherwise, the number is not divisible by 10. 1 2 3 4 5 0. What's here? Last digit 0 0. Then the number is divisible by 10. It is very simple. 0 के अलावा कोई और नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it is not divisible. Then next, divisibility of 11. Divisibility of 11. Let us take a number 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, this is the number. So first of all हम अल्टरनेट डिजिट्स का अलग अलग सम करेंगे। अल्टरनेट डिजिट्स मीन्स लास्ट राइट साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो डिजिट, दिस इज द डिजिट एट फर्स्ट प्लेस, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ। फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है, दिस इज द डिजिट एट थर्ड प्लेस, दिस इज द डिजिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ओके, देन सेकेंड प्लेस के डिजिट, दिस इज द डिजिट एट सेकेंड, देन 5 is at fourth place, this is at sixth place, and this is the digit at 8th place. मीन्स क्या करना है आपको? फर्स्ट प्लेस की डिजिट फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ, सेवंथ, मीन्स ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालना है। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करना है। इसी तरीके से सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, मीन्स इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है। समझ में आया ना आपको? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, अल्टरनेट डिजिट्स, एक एक डिजिट छोड़ छोड़ के आपको डिजिट्स प्लस करनी है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो प्लस करना है। सेकेंड, फोर्थ, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करना है। दोनों का सम आपको फाइंड करना है। नाउ लेट्स फाइंड द सम। अगर हम फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और एट, फर्स्ट प्लेस इज 8, 8 + 6, 8 + 6 14, 14 + 4, 14 + 4 18, 18 + 2 20, मीन्स और प्लेसेस का सम कितना आया? 20। नाउ इवन प्लेसेस के डिजिट्स का हम सम फाइंड करते हैं। दिस इज 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 and 1 16, 16। ठीक है, और प्लेसेस की डिजिट्स का सम है 20, इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम है 16। नाउ सब्ट्रैक्ट द सम। दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसमें से आप स्मॉल वाले सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन इज 20 - 16, दैट इज 4। इफ द डिफरेंस इज 0
और मल्टीपल ऑफ 11, अगर सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंस 0 आ रहा है, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स 11 की टेबल में जो नंबर आते हैं 11, 12, 33, 22, 33 एक्सेट्रा, सब दोनों प्लेसेस की डिजिट्स का सम का जो डिफरेंस है, इफ दैट सम इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, then the given number is divisible by 11. See here, what is the difference? 4 is the difference, means this number is not divisible by 11. अगर दोनों का डिफरेंस कितना आता, 0 या फिर 11, 22, 33, then the number is divisible by 11. I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा, डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू।